Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 19 और 20 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बात करेंगे आरबीआई ने अभी जो क्रेडिट्स होते हैं, जिसमें आगे आपके क्रेडिट कार्ड के लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स हो गए, इनको टाइटनिंग करने की बात की है। इसमें स्पेसिफिकली याद रखेंगे जो आपके हाउस लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, एजुकेशन, व्हीकल लोन, ये लोन इंक्लूडेड नहीं होंगे। राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो इशुएंस था ना, वो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ पे दिख रहा था आरबीआई को। इसीलिए ये कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो यूथ है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं कि क्रेडिट लोगों को ईजिली अवेलेबल किया जाता है 30 से 40% इंटरेस्ट रेट पर एनुअली। तो वो बहुत ज़्यादा एक कंसर्निंग फैक्टर था, तो उस पर थोड़ा सा टाइटनिंग करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये स्टेप लिया गया। यहाँ पर जो आपका आरबीआई ने जो रिस्क वेट होता है, मतलब जितना आप पैसा लोन देते हैं, पहले उसका 100% अमाउंट बैंक के पास या फिर बैंक्स के पास या एनबीएफसीज के पास होना चाहिए था, लेकिन अब उसको 25% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 125% अब उनके पास होना चाहिए। करेक्ट। कि the risk weights on the consumer credit exposure of commercial bank and NBFC companies was increased by 25%, and जो consumer credit of commercial bank and NBFC attracts a risk weight of 100%, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 125%। ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो लोन है ना, वो और महंगा हो जाएगा। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड पर, वो और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे उनके। लेकिन जो आपके एजुकेशन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन्स, इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के विजय कुमार, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं एट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके हिसाब से जो इम्पैक्ट होगा ऑफ दिस आरबीआई एक्शन, इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक्स, तो बिल्कुल सही। एंड इन टर्न दिस विल इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा स्टोर करना पड़ेगा अगर उन्हें आगे लोन प्रोवाइड करना है। ज़्यादा पैसा अपने पास रखने का मतलब क्या हुआ, उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट हिट होगा, और प्रॉफिट अगर उनका कम होगा तो वो प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे उस वैल्यू को, वो निकालेंगे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सीपीआई इन्फ्लेशन। सीपीआई इन्फ्लेशन 4.87 रहेगा अक्टूबर के महीने में, एंड इसमें यहीं पे देखेंगे जो आरबीआई का टारगेट है 2 to 6%, हम उसके बीच में आ चुके हैं, ये डाटा निकला है। देन आ जाता है जो फर्टिलाइजर्स और जो डायमंड्स है, दे विल बिकम कॉस्टली बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट। जो भी इजराइल एंड हमास की जो वार चल रही है, इसके बीच, इसकी वजह से आप देखेंगे जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो डायमंड्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे। करेक्ट। इवन लास्ट जो मैच था अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप को जीत लिया है। इसी के दौरान जब कोहली बैटिंग कर रहा था, तो एक पैलेस्टीनियन
सपोर्टर आके कोहली को हक करके गया, मतलब वो भी एक कहीं ना कहीं साइन था कि वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। बट हम उसमें नहीं जाएंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई कल वर्ल्ड कप, दूसरा कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कन्फ्लिक्ट उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो डायमंड्स हैं उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, और ये क्रिस्टल की ये रिपोर्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करें फिर अपने आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स की। अभी 11 लाख चिल्ड्रन इन्होंने मिस कर दी मीजल्स का फर्स्ट शॉट। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई WHO के द्वारा, WHO एंड USCDC मतलब यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने WHO के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की और जिसमें बताया कि इंडिया में 11 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो पहला शॉट होता है मीजल्स का उसको मिस कर दिया है। करेक्ट। और ये मीजल के शॉट का नाम क्या है? MCV1। और ये डाटा है 2022 का, कि 2022 में 11 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने मीजल शॉट को मिस कर दिया, और ये डाटा रिलीज किया गया है WHO एंड USCDC के द्वारा। फिर यहीं पे एक और चीज याद रखेंगे आप, ग्लोबली अगर हम बात करें ना, इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आ जाता है उन बच्चों की जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज को मिस किया। यहीं पे आप देखेंगे तो जो 10 कंट्रीज हैं वो हैं नाइजीरिया, जहाँ पे 30 लाख बच्चों ने मिस किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 18 लाख बच्चों ने, इथियोपिया 17 लाख, इंडिया में 11 लाख, पाकिस्तान 11, अंगोला 8 लाख, फिलीपींस 8 लाख, इंडोनेशिया 8 लाख, ब्राज़ील 8 लाख, मेडागास्कर 8 लाख। देन 10 कंट्रीज, ये जो 10 कंट्री हैं ये अकाउंट करती हैं 55% ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड जिन्होंने रिसीव नहीं किया इस वैक्सीन को। करेक्ट। फिर आ जाते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेयेसस, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड 1948 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया अ रोबोटिक्स चैलेंज फॉर एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड इन स्पेस प्रोग्राम? ये एक अभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। इसमें क्या होगा कि हम फ्यूचर में जो हमारे रोबोट्स होंगे ना, जो कि स्पेस में हम उनको यूटिलाइज कर सकेंगे, जो स्पेस में यूज आएंगे, उन रोबोट्स को यहाँ पे डेवलप करने का काम किया जाएगा। और यहीं पर एक टैगलाइन याद रखेंगे, जिस टैगलाइन के ऊपर या फिर हम कहें जिस थीम के ऊपर ये आपका रोबोटिक्स चैलेंज लॉन्च किया जाएगा वो है लेट्स बिल्ड अ स्पेस रोबोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स बिल्ड अ स्पेस रोबोट। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो ये आपका रोबोटिक्स चैलेंज रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? इसरो रोबोटिक्स चैलेंज UR राव सैटेलाइट सेंटर 2024, IROCU 2024, जो कि है इसरो रोबोट चैलेंज UR राव सैटेलाइट सेंटर 2024। ये आपका रोबोटिक्स का चैलेंज प्रोग्राम रहेगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इसकी टैगलाइन या थीम क्या रहेगी? लेट्स बिल्ड अ स्पेस रोबोट। करेक्ट। ये जो रोबोट रहेगा ये आपका व्हील्ड भी हो सकता है या फिर लेग्ड भी हो सकता है, राइट। व्हील्ड या लेग्ड रोवर रहेगा जिसको बनाया जाएगा, जिसके बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे वर्क किया जाएगा। एंड इस जो ये प्रोग्राम है, जो रोबोटिक्स चैलेंज है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये 20 नवंबर को स्टार्ट हो जाएंगी एंड ये एंड होंगी 15 दिसंबर को। जो विनिंग टीम है ये अवार्ड की जाएगी विद कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, जरा बताइए अभी रिसेंटली संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? 84 आर्टिस्ट को यहाँ पे सम्मानित करा गया था। फिर सिडबी ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया ताकि MSME सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग की जा सके? सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए अभी सिडबी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया? तो टाटा पावर के साथ यहाँ पे इन्होंने टाइप किया। फिर बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक ने किनके साथ टाइप करा ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एनेबल किया जा सके? तो येस बैंक ने टाइप किया ब्रिस्क पे के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया अलोंग विद विच कंट्री साइन 2 अग्रीमेंट्स टू बूस्ट द यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज? 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया ने, किसके साथ? इंडिया एंड इटली के साथ ये 2 अग्रीमेंट साइन हुए इन दोनों के बीच में। एंड ये जो अग्रीमेंट रहेंगे ना, बेसिकली डॉक्टर S जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये 2 डे की विजिट पे थे टू इटली 2 एंड 3 नवंबर को, जब ये अग्रीमेंट साइन किए गए। इनमें से अगर एग्रीमेंट की बात करें तो पहला एग्रीमेंट रहेगा द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप का, राइट। इससे क्या होगा, जो मूवमेंट है आपके वर्कर्स की, स्टूडेंट्स की एंड प्रोफेशनल्स की इंडिया और इटली के बीच में, उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। दूसरा प्रोग्राम आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन कल्चरल कॉर्पोरेशन। इसके के लिए क्या होगा, एक तो ये याद रखेंगे 2023 से 27 तक है, एंड इसके अंडर इंडिया एंड
इटली के बीच में, जैसे हम देने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो वो इसके अंदर यहाँ पे एनेबल किया जाएगा। तो हम देखेंगे एक दूसरी कंट्री में जब इंडिया के बच्चे इटली में जाएंगे और इटली के बच्चे जब इंडिया में आएंगे तो एक दूसरे के कल्चर को वो एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। तो इसीलिए कल्चर्स को बढ़ावा दिया जा सके और अकेडमिक कोर्सेज को भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स लाए जा सकें। एंड ये 2023 से 27 के लिए इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले ये 2017 से 2020 के लिए लॉन्च किया गया था एंड फिर 20 में ख़त्म हो गया था ये एक्सचेंज प्रोग्राम और अब वापस से 2023 से 27 को लॉन्च करा गया है। तो ये दो प्रोग्राम याद रखेंगे एंड इंडिया और इटली के बीच में ये दो एग्रीमेंट्स साइन किए गए। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सेवा, राइट, ये एक नया प्लान था सेवा जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर बात की गई। किस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ योनो बता दो, ये किसकी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रहेगी, ठीक है। फिर अभी किस यूनियन ने अपनी खुद की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च की है? अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसके द्वारा लॉन्च की गई? अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। और अफ्रीकन यूनियन ही अगर आपको याद हो तो ये G21 मेंबर बनेगा ऑफ G20 जो था पहले। फिर पेटीएम के ऑडिटर का नाम बता दो, कौन है पेटीएम के नए ऑडिटर? वो रहेंगे आर बैटली बॉय, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इंटर्म डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो इंटर्म डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? राहुल नवीन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो अभी रिसेंटली नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे? ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश सेठिया। इन तीनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली एज द डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश सेठिया, इन तीनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ऑफ एनबीएफसी, जो कि बैक्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ आरबीआई की, शक्तिकांत दास यहाँ पे गवर्नर रहेंगे जिनको A+ क्रेडिट रेटिंग भी, जिनको A+ रेटिंग मिली थी। हेडक्वार्टर इनका मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा एंड 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ मास्टरकार्ड इंडिया? मास्टरकार्ड इंडिया के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? वो है फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार को, ठीक है। फिर अभी ऋतिक रोशन को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? तो एक लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिलिल, इनका यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ वो पहली वीमेन आर्मी सर्जन जिनको अभी पैरा कमांडो वो बनी है, तो वो पहली वीमेन आर्मी सर्जन जो कि पैरा कमांडो बनी वो है पायल छाबरा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर एक चीज और यहाँ पे कुछ ना आरबीआई के अपडेट्स हैं, ये भी याद रखना कि आरबीआई ने स्ट्रेंथन किया रेगुलेशन ऑन कंज्यूमर लैंडिंग, मैंडेट्स हायर कैपिटल बफर फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसी के साथ साथ आरबीआई ने अलाउ किया ओपन करंट अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स अलोंग विद स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स एंड आरबीआई ने इम्पोज किया पेनल्टीज ऑन एक्सिस बैंक, मन्नापूर्णा फाइनेंस एंड आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस फॉर रेगुलेटरी वायलेंस, ठीक है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी हब की। टी हब के द्वारा अभी 2 चीज़ें लॉन्च की गई हैं ऑन देयर फाउंडेशन डे। ये इनका 8वां फाउंडेशन डे था 16 नवंबर को। एंड टेक्नोलॉजी हब के द्वारा 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, एक तो है टेक्नोलॉजी ब्रिज, टी ब्रिज एंड दूसरा है टी स्किल। टी ब्रिज की बात करें, ये एक इंटरनेशनल विंग रहेगा ऑफ टी हब जो कि डिजाइन किया गया टू फैसिलिटेट ग्लोबल मार्केट एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स एंड एनेबल देम टू एक्सपेंड देयर रीच बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स। मतलब जो स्टार्टअप्स रहेंगे उनको इंडिया की मार्केट से निकल के ग्लोबल का भी एक्सेस मिल सके, ग्लोबली वो भी प्ले कर सकें, इसीलिए ये टी ब्रिज लॉन्च किया गया। और टी स्केल क्या रहेगा? फैक्टोरियल बिजनेस इंक्यूबेटर प्राइवेट लिमिटेड। ये हेल्प करेगी 25 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को ताकि 12 मंथ की उनकी जर्नी पे ताकि उनको सीरीज ए फंडिंग यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराई जा सके। तो याद रखेंगे टेक्नोलॉजी हब का 8वां फाउंडेशन डे था 16 नवंबर को। 2 चीज़ लॉन्च करी, एक टेक्नोलॉजी ब्रिज और टेक्नोलॉजी स्केल।
टी हब लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। एंड इसका एम क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। अभी टी हब 2.0 भी लॉन्च किया गया था। ये भी कहाँ था? ये था तेलंगाना, हैदराबाद में। चलिए, इसके अलावा अगर देखें कुछ और करंट अफेयर्स, जैसे बताओ अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक ब्लास्टिक मिसाइल को के प्रपोजल को अप्रूव किया गया। उसका नाम क्या रहेगा? प्रलय नाम की वो मिसाइल रहेगी। ठीक है। फिर अभी किस आईआईटी के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट्स को? तो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट्स लैब को। फिर अगर मैं बात करें 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती? तो महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा जीती गई 5th एडिशन ऑफ नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप। ठीक है। फिर एशिया कप किस कंट्री ने जीता फॉर द 8th टाइम? तो एशिया कप जीता गया इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बैग दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर? तो किसके द्वारा जीता गया ये दाहन प्राइज? याद रखेंगे, दीप्ति बबूता के द्वारा जीता गया ये दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। ये आपका जो प्राइज, ये जो दाहन प्राइज है, ये बेसिकली पंजाबी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। और अभी दीप्ति बबूता को इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जिसका नाम रहेगा हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। हंगर ब्रेथ लाइक दिस, ये शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। दीप्ति बबूता यहाँ पे पंजाबी ऑथर रहेंगी एंड ये वो पहली वीमेन बनी जिनको सम्मानित किया गया दाहन प्राइज से। यहाँ पे 25,000 कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से इनको सम्मानित किया जाएगा। एंड ये 2 अलग से आपको फाइनलिस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा अगर और देखें करंट अफेयर्स, तो ज़रा बताओ सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती गई कार्लोस सेंस के द्वारा, और ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ भारत में जब मोटो जीपी हुई थी, देखो मोटो जीपी क्या होती है? ये बाइक रेस होती है। और जो आपकी F1 ग्रैंड प्रिक्स होती है ये कार रेस होती है। अगर मैं पूछूं मोटो जीपी भारत जो में हुई थी, अभी यूपी में हुई थी, तो यहाँ पे जो टाइटल स्पॉन्सर थे वो कौन सी कंपनी थी? वो थी इंडियन ऑयल, यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर थी। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त किसको दिया गया? वो था बाबर आजम को। और आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त थी आर्लिनी कैली। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ भी, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जीत गई, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी के द्वारा एक ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? दिल जशन बोले। ठीक है। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है अंतिम पंघाल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been appointed as the director, managing director and chief executive officer of Kotak Mahindra Bank Limited? और याद रखेंगे 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। एंड इनको यहाँ पे की मैनेजरल पर्सनल का भी पोस्ट दिया गया ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 3 ईयर्स। ये रहेंगे अशोक वासवानी। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे दीपक गुप्ता को। दीपक गुप्ता यहाँ पे इंटर्म आपके चेयरमैन थे, याद रखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अब इनको रिप्लेस करके अशोक वानी ने इनकी पोजीशन ले लिया एंड ये 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंटेड रहेंगे। ठीक है। एंड अशोक वासवानी को 3 साल का एक्सपीरियंस है इन द बैंकिंग सेक्टर। करेक्ट। चलिए, इसी के अलावा कुछ और करंट अफेयर्स देखें तो ज़रा बताओ इंडिया का पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल या फिर ओपीडी फैसिलिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स किसके द्वारा लॉन्च की गई? आरएमएल हॉस्पिटल के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है। इंडिया की पहली डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर्स किसके द्वारा? आरएमएल हॉस्पिटल के द्वारा लॉन्च की गई। देन ई भूमि पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस स्टेट के द्वारा? हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया ई भूमि पोर्टल। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई, 14th एडिशन था इसका, कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक। एंड फिर अभी प्रोजेक्ट अभिनंदन के अंदर कितने एयरपोर्ट स्टार्ट किए गए या कितने एयरपोर्ट्स इंक्लूड किए गए? तो 16 एयरपोर्ट्स इंक्लूड किए। प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया गया एयर इंडिया के द्वारा। ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ 41st
साइट जिसको ऐड किया गया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, वो कौन सी है? वो है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। एंड 42nd साइट कौन सी बनी? वो है होयसाला टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स के ऊपर। अभी आरबीआई ने अप्रूवल दिया हिंदुजा ग्रुप एंटिटी को, ताकि ये एक्वायर कर सके रिलायंस कैपिटल को। रिलायंस कैपिटल को एक्वायर करने के लिए अभी बोली लगी थी, बिडिंग हुई थी, और जो सबसे ज़्यादा बिडिंग जिन्होंने की वो है हिंदुजा ग्रुप। इन्होंने बिडिंग की, ऑफर दिया इन्होंने ऑफ 9,650 करोड़ रुपीज़ टू टेक ओवर रिलायंस कैपिटल। एंड अभी आरबीआई ने इनिशिएट किया बैंकरप्सी प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिलायंस कैपिटल अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। एंड यहाँ पर इसी के अंडर, इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर हिंदुजा ग्रुप एक्वायर करेगा रिलायंस कैपिटल को। कितने अमाउंट के लिए? 9,650 करोड़ रुपीस के लिए। एंड नागेश्वर आर वाई इनको अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर इसके अलावा अब बताओ, अभी रिसेंटली पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर हुआ था? ये यूपी में हुआ। करेक्ट, यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो था। इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? ये इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा गृह आधार स्कीम को लॉन्च किया गया? ये गृह आधार स्कीम लॉन्च की गई थी गोवा के द्वारा। ठीक है, गोवा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? तो पीएम मोदी जी के द्वारा ये इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया। मूविंग ऑन, ऑब्यूटरी पर आते हैं। तो रियोन्ड आर्ट हिस्टोरियन एंड पद्मा अवार्डी BN गोस्वामी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। राइट, चंडीगढ़ में इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 90। 15 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ था इन पंजाब प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, ये IAS थे, इन 1956 अपॉइंट हुए थे, लेकिन फिर 1958 में इन्होंने अपनी रिज़ाइन कर दिया इस पोस्ट से टू परस्यू PhD। एंड ये पद्मा अवार्डी हैं। करेक्ट, अगर बात करें इनसे रिलेटेड तो इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 1998 में, एंड पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर डेम AS बायट। तो इनको AS बायट के नाम से जानते हैं, डेम एंटोनिया सुजैन बायट। ये एक बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर हैं, क्रिटिक हैं एंड पोएट हैं, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 87 इन लंदन UK। इनका जन्म 1936 में हुआ था इन इंग्लैंड UK। ठीक है, फिर इनको पेन सिल्वर पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1986 में। बेबल टावर से 1996 में सम्मानित किया गया था इनको। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, जो कि है स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो आपके बोथ वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स हैं, उनके ऊपर डिफरेंट वैरायटीज़ की जो स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई। एंड इस किताब को रिलीज़ किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। एंड इस बुक को कंपाइल एंड एडिट किया गया उमेश कुमार भारती एंड DD बीस्ट के द्वारा। करेक्ट, फिर इसी के साथ साथ इस बुक को पब्लिश किया जाएगा विद द फंडिंग फ्रॉम नेशनल हेल्थ मिशन इन हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर नेशनल न्यूरोपैथी डे। 18 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल न्यूरोपैथी डे। एंड ये नेचुरोपैथी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 नवंबर को, और 2023 में इसका 6ठा एडिशन हमने ऑब्जर्व करा है। फिर इसी की थीम याद रखेंगे, नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ, ये थीम रहेगी इस डे की, मार्क करके चलेंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? बेसिकली जब आप किसी भी ड्रग को एक लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, तो उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है। राइट, जैसे हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा था, तो जो वैक्सीन बना रहे थे हम कह रहे थे कि ये वैक्सीन उस पर्टिकुलर स्ट्रेन पे वर्क करेगी और दूसरे पर्टिकुलर स्ट्रेन पे वर्क नहीं करेगी। रीजन बीइंग कि जब आप दूसरे स्ट्रेन पे यूज़ करेंगे तो दूसरा स्ट्रेन म्यूटेटेड हो चुका है और वो इसका आदी भी हो सकता है इस दवाई का, और उस वैक्सीन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जो आपकी ड्रग्स होते हैं ना, वो भी सेम होते हैं कि जो आपके वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंस बना लेते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग का। तो विद टाइम वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं। एंड अगर हम अपनी दवाई को भी कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं करेंगे तो
उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे कम हो जाएगा। तो इसीलिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। तो अभी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में ये वीक ऑब्जर्व किया गया, और इसकी एक थीम याद रखेंगे, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। थीम क्या रहेगी? प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक की, जो कि 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में हुआ। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। चौथा, इंडिया में जो लद्दाख का जो चौथा जीआई टैग मिला भी जिस प्रोडक्ट को, वो है सी बकथॉर्न। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है सी बकथॉर्न, करेक्ट। ये प्रोडक्ट आपका लद्दाख में मिलता है। ये आपका काफ़ी प्रोडक्ट हार्डी प्रोडक्ट है बेसिकली। आप इसको, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं कि आपका इस प्रोडक्ट को आप बेसिकली किसी भी हार्डी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, राइट। ये -42 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं, राइट। ये प्रोडक्ट जो होता है काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को विदस्टैंड कर सकता है। ये आपका जो आपका सूखा पड़ जाता है उसको भी ये विदस्टैंड कर सकता है। एंड इससे आपकी जूस, टी, ट्रेडिशनल मेडिसिन भी आपके इस प्रोडक्ट से मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सी बकथॉर्न, ठीक है। और इसको अभी जीआई टैग मिला है फ्रॉम लद्दाख, और ये चौथा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर हम देखें जिनको जीआई टैग मिला जिन प्रोडक्ट्स को, वो क्या क्या रहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका पश्मीना वूल, फिर लद्दाख का राक्सती कार्पो एप्रिकॉट को, एंड लद्दाख का शिंगॉक्स जो कि एक वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। इन तीनों को पहले मिल चुका था, और सी बकथॉर्न को भी ये चौथा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बिहार गवर्नर, इन्होंने अप्रूव किया एक बिल रेजिंग द कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू 65% फ्रॉम 50%। 50% से बढ़ा के बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोटा 65% कर दिया है। बैकवर्ड क्लासेस में आ जाती हैं आपकी SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी, ठीक है। फिर यहीं पे आप देखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं तो गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने अप्रूव किया बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को। एंड इसी के अंडर दिस विल रिजल्ट इन 65% रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, EBC एंड OBC फॉर द करंट 50% से 65% हो जाएगा। कंबाइन, टोटल कंबाइन करें तो जो एग्जिस्टिंग 10% थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसको भी मिला दे तो जो टोटल कोटा हो जाएगा रिजर्वेशन का, वो 75% का हो जाएगा बिहार में, ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे कुछ की पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू बिल कोटा, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है इनका कोटा रेज किया जाएगा फ्रॉम 18% टू 25%, बैकवर्ड क्लास का 12 से 18%, देन शेड्यूल कास्ट का 16 से 20% एंड शेड्यूल ट्राइब का 1% से 2% इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और जो टोटल परसेंट हमें राइज देखने को मिलेगा, आप देख रहे हैं 15 से 65% का यहाँ पर आपको राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो रिजर्वेशन थी फॉर वीमेन, BC वीमेन, उसको भी यहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया, राइट। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? बिहार के नीतीश कुमार। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, जो टोटल रिजर्वेशन होता था 50% बिहार में, वो 50 से 65% कर दिया है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एंड 10% यहाँ पे EWS का होता था, तो टोटल अब 75% कोटा हो गया आपका बिहार में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। 11 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया मिस्ड फर्स्ट मीजल शॉट अकॉर्डिंग टू WHO US CDC रिपोर्ट। इसरो ने लॉन्च किया रोबोटिक चैलेंज फॉर एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड इन स्पेस मिशन विद कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज। इंडिया एंड इटली ने साइन किया 2 अग्रीमेंट्स टू बूस्ट यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश सेठिया एज द डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। टी हब ने अनवेल किया टी ब्रिज एंड टी स्किल ऑन 8th फाउंडेशन डे। देन दीप्ति बबूता, ये वो पहली वीमेन बन गई टू बैक धान प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। अशोक वासवानी को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर, MD एंड CEO एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 3 साल के लिए। देन RBI ने अप्रूव किया हिंदुजा ग्रुप एंटिटी एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल। रियोन आर्ट हिस्टोरियन एंड पद्मा अवार्डी BN गोस्वामी, इनका निधन हो गया। बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर डेम AS बाइट, इनका निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखू जी, इन्होंने रिलीज की एक बुक स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेशनल न्यूरोपैथी डे 18 नवंबर। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर। एंड लद्दाख ने अचीव किया 4th GI टैग विद द प्रोडक्ट जो है सी बकथॉर्न। देन बिहार के गवर्नर ने अप्रूव किया बिल रेजिंग द कोटा ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम 50% टू 65%, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे, जो कि आपकी लर्निंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। GI रजिस्ट्री हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड द GI टैग टू कोरापुट काला जीरा राइस। ये जो कोरापुट काला जीरा राइस है, ये किस स्टेट का प्रोडक्ट रहेगा? तो कोरापुट काला जीरा राइस ये आपका उड़ीसा का प्रोडक्ट रहेगा,
ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्लाउड प्लेटफॉर्म में ट्रेन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया? वो है जीसीपी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने टाई अप किया MEITY के साथ, ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे ट्रेन किया जा सके। फिर जो मॉब लिंच्ड विक्टिम्स होते हैं, राइट, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने की बात किस गवर्नमेंट ने करी? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर मॉब लिंच्ड विक्टिम्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कहाँ पर? लद्दाख की नोयोमा डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया दही हांडी फेस्टिवल एज अ पार्ट ऑफ कृष्णा जन्माष्टमी? तो याद रखेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पर याद रखेंगे सेलिब्रेट किया गया दही हांडी फेस्टिवल एज अ पार्ट ऑफ कृष्णा जन्माष्टमी। फिर इसी के साथ साथ अभी एनर्जी कॉरपोरेशन केस में एक एनर्जी सेक्टर में कॉरपोरेशन साइन किया गया। इंडिया ने किस कंट्री के साथ? तो सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कभी डैम सेफ्टीज़ के ऊपर, राइट, डैम सेफ्टी के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, किसके द्वारा कराई गई? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कराई गई। फिर ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये एक फोरम हुआ, कहाँ पर? रशिया में हुआ। और इस फोरम में किसने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से? सरबंदना सोनोवाल जी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। फिर फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में। नेक्स्ट, किस स्टेट के गवर्नर ने रिसेंटली रिलीज किए 6 स्पेशल कवर्स ऑन मनियम, विप्लावा, सराधी, अलूरी, सीतारामा, राजू? तो किसके स्टेट के गवर्नर है? वो हैं गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश S अब्दुल नजीर जी। नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया विद्या समीक्षा केंद्र VSK, एंड उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ 141 प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रेजिंग इंडिया, जो कि है PM श्री स्कूल्स। तो 141 PM श्री स्कूल्स कहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई, जिसके साथ साथ विद्या समाजिक केंद्र इनको भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। तो बताइए कहाँ पर? ये देहरादून सिटी में इन उत्तराखंड लॉन्च किए गए PM श्री स्कूल्स। और ये PM श्री स्कूल्स का काम क्या होगा? बेसिकली बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है नई तरीके से यहाँ पे अपडेटेड तरीके से यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी, राइट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद IICA NSC रिसेंटली टाई अप किया एंड इन्होंने एक ऑर्गेनाइज कराई एक वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन मुंबई महाराष्ट्र? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? वो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इन्होंने IICA के साथ मिलके एंड NSC के साथ मिलके यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए, कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। फिर इसी के साथ साथ बात करेंगे TCS ने अभी किसके साथ कोलैब किया? डसॉल्ट सिस्टम के साथ कोलैब किया इन लिविंग हार्ट्स प्रोजेक्ट। फिर अभी रिसेंटली याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का कौन सा एडिशन हुआ था? 4th एडिशन हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? महाराष्ट्र के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, नेम द गवर्नमेंट एजेंसी या NGO जिन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया स्पेशल कैंपेन 2.0 टू रिजॉल्व द पेंडिंग मैटर्स एंड प्रमोट क्लीनलीनेस स्वच्छता विद इन द गवर्नमेंट ऑफिस। देखो, दो चीज़ पे बात करेंगे। एक तो जो ग्रीवियंस रिड्रेसल, जो भी पुरानी कंप्लेंट्स बची थी आपके गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको खत्म करने का काम किया गया। दूसरा, क्लीनलीनेस के ऊपर यहाँ पे बात की गई, सफाई के ऊपर बात की गई। तो पूछा जा रहा है किस गवर्नमेंट एजेंसी या NGO ने ये दोनों इनिशिएटिव्स को पूरा करा? तो वो रहेगा आपका नीति आयोग, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे सरपंच संवाद। ये सरपंच संवाद ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किसके द्वारा लॉन्च की गई? असम के गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया स्किल इंडिया डैश प्लेटफॉर्म, SID प्लेटफॉर्म को। SID क्या है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपसे इनडायरेक्टली फुल फॉर्म पूछी गई है। एंड स्किल इंडिया डेवलपमेंट स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे हम डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात करते हैं लोगों को, ताकि आने वाले टाइम में उनको स्किल्स हो सके। एंड जो डिजिटल स्किल्स हैं इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप में जो उनके काम आएगी, वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसी प्लेटफॉर्म के अंदर हम देखेंगे कि काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट, सिस्को एंड स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, ये सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला,
विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। दूसरा, एन संकारिया हु पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड थे। और तीसरा, स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल, ये अभी न्यूज़ में था, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड रहेगा। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। कॉपी पेस्ट मत करा करो आंसर्स को, खुद आंसर्स को सर्च करो, गूगल करो, उनके बारे में पढ़ो और फिर नीचे कमेंट करो। अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, कोई भी मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने का वो तो एक चीटिंग सी हो गई। खुद पढ़ के करो, खुद समझो, उसके बारे में उस आर्टिकल्स पढ़ो, ये क्या चीज़ है, क्यों सर ने पूछी है, इनका क्या यूज़ हो सकता है, कैसे होगा, समझो उन चीज़ों को एंड देन कमेंट करो आंसर्स। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.